محترم ناظرین، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے محمدیہ ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، لیکن سنو، توجہ رکھنا ان باتوں کا۔ ایک نوجوان اتنا پیارا تھا نا حضور، اتنا پیارا، اور اس کا جواب نہیں تھا، نماز نہیں چھوٹتی، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، چلتا تھا، آہا، چلنے کی ادا بولتی تھی نبی نبی، کھانے کی ادا نبی نبی، پینے کی ادا نبی۔ لوگ چہرہ دیکھ بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے منہ سے ہونٹوں سے گلاب کی پنکھڑیاں جل رہی ہیں۔ اور اس کا عالم یہ تھا کہ اگر دامن میں آگ لے لیا کرتا تھا نا آگ، تو اس کا دامن بھی نہیں جلتا، اگر ہاتھوں میں آگ لے لے تو ہاتھ نہیں جلے، اگر آگ پہ چلے تو پاؤں نہ جلے۔ تمہارے یہاں کوئی ایسا آ جائے تو آدھا گاؤں اسی کے پیچھے، آدھا گاؤں اسی کے پیچھے۔ لیکن غور کرو ایسا نوجوان، سب کہہ رہے ہیں ہماری دکان میں چلو، ہمارے مکان میں چلو، دعا کر دو برکت، دعا کر دے تو قبول۔ اللہ اللہ، ایک دن اس کا پرانا دوست مل گیا، توجہ رکھنا، سننا اور اپنے گریبان میں جھانکنا۔ ایک دن اس کا پرانا دوست مل گیا اور وہ دوست کہنے لگا، بھائی ذرا اتنا بتا، تو نے کون سا ایسا عمل کر دیا جس کی وجہ سے تجھے یہ مرتبہ ملا، کون سا ایسا کام کیا؟ اس نے موڑے پہ ہاتھ رکھا، ایک طرف کو لے گا، کہا تو تو میری پچھلی زندگی جانتا، کہاں بتا؟ کہا ذرا سن لے، پوری بستی میں سب سے بڑا کنڈا میں تھا، سب سے بڑا ڈان میں تھا، میرے پاس 40-50 نوجوان رہتے تھے جنہیں میں مرغے تلے ہوئے کھلاتا تھا، جنہیں مچھلی اور شراب پلاتا تھا، اور وہ 40-50 نوجوان میں جس کی چاہتا تھا زمین چھین لیا کرتا تھا، جسے چاہتا تھا مروا دیا کرتا تھا، جس کی بہن بیٹی کی چاہتا تھا عزت لوٹ لیا کرتا تھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا 50 لڑکیوں کی عزت نیلام کر دی، مگر ایک دن صبح صبح کیا ہوا، میں نہا دھو کر کے جب گھر سے نکلا، اور جیسے ہی میں گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، اور جیسے ہی آ رہی ہے یہاں سے یہاں تک پوری چادر اوڑے ہوئے، اس کی چادر میں قیمت تو دکھائی دے رہے تھے مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ لڑکا بولا میری نیت خراب ہو گئی، میں نے آگے سے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کہا اے لڑکی ذرا بتا تو کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، ذرا اتنا بتا دے۔ وہ لڑکی کانپ گئی، لڑکی ڈر گئی، سمجھ گئی ہے وہی خندہ ہے جس نے 50 لڑکیوں کی 50 کی عزت نیلام کر دی۔ کوئی اس سے بولتا نہیں ہے، جس کو چاہتا مروا دیا کرتا، 40-50 گنڈے ساتھ میں رہتے ہیں۔ وہ لڑکی دل میں کہہ رہی ہے اے اللہ مجھے بچا لے، میرے مولا میری عزت کو بچا لے۔ یہ نوجوان کہنے لگا بول کیا کرتی ہے، اپنا بایو ڈاٹا بتا۔ وہ لڑکی کانپ گئی، اور کانپنے کے بعد کہنے لگی او بھائی میں تیری بستی میں رہتی ہوں، مگر سن لے میرا گھر ٹوٹا ہوا، چھت پر پڑا ہوا ہے، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، نہ میرا بھائی ہے نہ میری بہن ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، میں اکیلی ہوں۔ ہاں ہاں اتنا ضرور ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ وہ لڑکے کہنے لگے میری شادی ہو گئی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، مگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب کوئی دیکھنے والا نہیں، میں دوسری عورتوں کے یہاں برتن مانجنے جاتی ہوں، جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں، ان کا کام کرنے جاتی ہوں، جو مجھے مزدوری ملتی ہے میں اپنے بچوں کی گزر بسر کر لیتی ہوں۔
लड़की कहने लगी भाई मुझे छोड़ दे, मगर इसकी नीयत खराब हो गई। जैसे आज कुछ नौजवान दूसरों की बहन बेटियों पर नीयत खराब करते, अपनी बहन को याद कर लेना। तुम अगर दूसरों की बहन बेटी को तकेगा तो दूसरा तुम्हारी बहन बेटी को तकेगा। प्यारो, बड़ी मुश्किल से इन्होंने 1000 500 रुपए करके, ये इतनी दूर से सफर करके, ये इतने बिजी पीर साहब इतना टाइम दे रहे, मगर इस प्रोग्राम को दिल पे ले जाना और आज के बाद तौबा करके चले जाना। तुमने इतनी मुश्किलों से बुलाया, इतने मुश्किलों से आए। ये लड़की कहने लगी भाई मुझे छोड़ दे। वो लड़का कहने लगा सुन ऐ लड़की, अगर तूने मेरा कहना मान लिया तो मैं तुझे दौलत दे दूंगा, ढेर लगा दूंगा, दौलत के ढेर। कहना क्या मान लिया, उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगा। उसकी नीयत खराब हो गई थी, गलत हरकत के लिए बोला। मेरी बहनें बैठी हैं, इससे खुल के नहीं बोल सकता, इतने को तुम पूरी बात समझ ले। वो लड़के ने गलत जुमला बोल दिया, कहने लगा मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलतमंद बना दूंगा। तू मेरे हफ्ते में 10 दिन में 1 मरतबा मेरा कहना मान लिया कर, तेरे बच्चे मैं पाल लूंगा। लड़की की आंखों में आंसू और दिल से कह रही है परवरदिगार आज मुझे बचा ले, मौला आज बचा ले। कहा लड़की कहना मान ले, उसे जलाल आ गया। वो लड़की कहने लगी अब क्या जलाल आया, सामने से कहने लगी अरे शर्म कर शर्म। जिसके 40-50 गुंडे रहते थे, कहने लगी तू कैसा मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान। अरे नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में 1 मरतबा हाथ में हाथ दे दे तो मरने के बाद अगर नीयत खराब और इस नीयत से हाथ में हाथ दे, मेरा इशारा समझ गए होंगे, तो नबी फरमाते मरने के बाद उसकी खबर में 99 अज़दहे सांप पैदा कर दिए जाएंगे और बिच्छुओं का बिस्तर कर दिया जाएगा। आज 2 इंच का अगर बिच्छू हमें काट ले तो या तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है या हजरत से दम कराना पड़ता। रात भर नींद नहीं आती, मगर नबी फरमाते हैं प्यारे मेरी बात नहीं है, दिल पे ले जाना और आज के बाद किसी की बहन बेटी को मत तकना। नबी फरमाते हैं अगर कब्र का बिच्छू 1 मरतबा डस लेगा, डंक मार देगा, 1 मरतबा अगर डंक मार देगा तो उसका जहर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, नबी फरमाते 70,000 साल तक दिन ब दिन ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। है हिम्मत। अल्लाह वो लड़का कहने लगा रे सब बातें छोड़ दो, तेरी क्या मर्जी है, मेरा कहना मान, तुझे दौलत दे दूंगा, रुपये दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। और मेरी बहन सुन लो, जो फैशनीले कपड़े पहनती हो सुन लो, और मेरी इस्लामी रिश्ते की बहन सुन ले, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह के जा रहा हूँ, अरे तूने मुसलमान अपनी माँ का दूध पिया, तूने तेरी रगों में अपने बाप का खून है, और मेरी बहन औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। और मेरी बहन जो तू आज रात को 10 बजे तक 11, 12 बजे तक लड़कों से बातें कर रही है, और मेरी बहन आज से तू तौबा कर लेना और उठ जाना, तौबा करके अल्लाह माफ कर देगा। आज के बाद किसी से बात मत करना और दुनिया वालों को बता देना अब हिंदुस्तान में एक मुस्कान नहीं बल्कि हर घर में कई मुस्कान होगी। तकबीर, नारे रिसालत।
ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। अब जब इतना कहा तो वो लड़की रोने लगी और कहने लगी, अरे तेरी दौलत पे लालच, तेरे रूपियों पे लालच, तेरे पैसों पे लालच, वो अकेली लड़की जिसका कोई नहीं था, तारीख तुमने पढ़ी का है। वो लड़की कहने लगी, तेरी दौलत पे लालच, रूपियों पे लालच, और ये जा करके कहा, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमने का लाल मुझे मुबारक हो। वो लड़की चली गई। लड़की ने अपना पल्लू तो पल्लू, अपना चेहरा तो चेहरा, पल्लू तक नहीं दिखाया। मगर इम्तिहान सुनो, दूसरे क्लास में तब जाओगे, पहले क्लास का इम्तिहान देना पड़ेगा। अब अल्लाह ताला उसे अपने करीब करना चाहता तो इम्तिहान देखो। तुम जरा सी परेशानी में घबरा जाते हो, उल्टे सीधे जुमले बोलने लगते हो। कुछ दिन गुजर गए, वो लड़की उस लड़के के हाथ नहीं आई, चेहरा तो चेहरा, पल्लू भी नहीं दिखाया। मगर सुनो, अल्लाह, उस बस्ती में सूखा पड़ गया। जो अनाज था वो बह के चला गया, सारा अनाज खत्म। अब मीडियम लोगों के यहाँ जो खाना था, अभी लॉकडाउन में देखोगे कितनी परेशानी पड़ी, ऐसे ही खाना खत्म। मीडियम लोग जो थे उनके घर में चूल्हा नहीं चला, तो इस गरीब का क्या होगा। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, ये माँ अकेली है। एक दिन हो गया इस गरीब लड़की के घर में चूल्हा नहीं जला। अरे आज हम बुलेट पे घूमते, कारों में घूमते, जेबों में नोट लिए घूमते, बिरयानी और पता नहीं क्या क्या अल्लाह की नेमतें खाते, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। उनसे पूछो जिन्हें 1 चम्मच खाने को रिस्क नहीं मिलता, उनसे पूछो। उस लड़की के घर में 1 दिन हो गया चिराग नहीं जला, 2 दिन हो गए चिराग नहीं, 3 वो चूल्हा नहीं जला। अल्लाह समझ। अब जब दूसरा दिन हुआ तो 3 बच्चे कहने लगे, माँ क्या हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा? माँ हमें कुछ खाना खिला दिया जाए, माँ हमारी जान बचा लो माँ। अब वो लड़की की आंखों में आंसू आ गए, 3 बच्चों को सीने से लगा लेती है, कहती है, मेरी लाल, मेरे लाल, तुम्हारी माँ की जान तुम पे कुर्बान। मेरे शहजादों अभी इंतजाम करती हूँ। वो लड़की बाहर जाती है, 3 बच्चे इंतजार देख रहे हैं कि हमारी माँ कुछ लाती होगी। और 3 जब माँ बाहर जाती है, दरवाजे पे जाकर के ये माँ दूसरी औरतों से भीख मांगती है, कहती है, मेरी बहन मेरे बच्चों को बचा ले। कहा, मेरी बहन मेरे बच्चों को बचा ले। और तो कह रही है, बहन हमारे घर में खुद खाने को नहीं है, किसी के घर में 1 दिन हो गया, किसी के घर में 1 टाइम हो गया। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की को कुछ भी नहीं मिला। बच्चे 3 दरवाजे को देख रहे, माँ कुछ लेकर के आती होगी, लेकिन जब माँ आती है तो खाली हाथ आ जाती है। और जैसे ही माँ खाली हाथ आई, कहा, माँ हमारा क्या होगा? 3 बच्चों की जान लबों पर, कहा, माँ हमें 1 लुकमा खिला दे। अरे उस माँ का क्या बना होगा? उस माँ से और बाप से पूछो, अल्लाह ना करे किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो वो अपनी दुकान छोड़ देता है, अपना कारोबार छोड़ के शहर लेके भागता है। मगर इस गरीब लड़की का कोई नहीं है। तीसरा दिन हो गया, 3 बच्चे मरने के करीब है। बच्चे कुमला रहे, कह रहे, माँ हमें बचा लो माँ। अल्लाह अल्लाह, अब वो लड़की परेशान है, मुसल्ला बिछा करके दुआएं कर रही है, मौला मौला मुझे इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाओ। ऐ अल्लाह मेरे बच्चों की जान बचा ले। अल्लाह ने दुआ कर रही है, मगर खाने को कुछ भी नहीं है। माँ ने हांडी चढ़ा दी चूल्हे पे, पत्थर डाल दिए उसमें और हांडी को ढक के रख दिया। 3 बच्चों ने कहा, माँ कितनी देर में खाना बनेगा? माँ हमारी जान निकली जा रही है। बच्चों की ज़बानें बाहर आ जाती है और माँ कह रही है, मौला आज मौला मेरे बच्चों
की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह कोई सबक बना दे। अल्लाह जरा सुनो, ये भी तो इस्लाम की शहजादी है, मगर इस लड़की के तीनों बच्चे अब जब मरने के करीब आ जाते हैं, जब दम तोड़ने के करीब आ जाते हैं, तीनों बच्चे कहते हैं माँ हमें बचा लो माँ, मगर माँ कहती है मेरे लाल चलो और रुको। तीनों बच्चों को रख दिया और रखने के बाद यही माँ बाहर को निकल जाती है। और नौजवानों, आज तुम अपने माँ बाप को आंखें दिखाते हो, आज माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, तुम्हें क्या पता तुम्हारी माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी। अरे तुम्हें क्या पता इतने बड़े ऐसे ही नहीं हो गए। आज माँ का थूक तुम्हें अच्छा नहीं लगता, आज माँ की खकार अच्छी नहीं लगती, मगर इसी माँ ने अपने हाथों से तुम्हारी खिलाफत भेजी है, अपने हाथों से तुम्हारा पेशाब और लैट्रीन साफ की है, इस माँ ने नाक और थूक साफ की है और उतना ही तुम्हें प्यार किया है। वो तीनों बच्चे घर में है, अम्मा बाहर देख रही है, मौला कोई सबक पैदा कर दे। इस लड़की ने चादर ओढ़ी और जब बाहर को गई तो जाकर के देखा कि उस मालदार के घर पे लाइन लगी पड़ी है, वही मालदार जो हुंडा था उसके घर पर लाइन लगी पड़ी है। अब ये लड़की ने पूछा ये लाइन कैसी लगी है, लोगों ने बताया अगर किसी के पास जमीन हो तो जमीन रखने के बाद उसे अनाज मिल रहा है, अगर किसी के पास सोना चांदी हो, सोना चांदी रखने के बाद उसे अनाज मिल रहा है। लड़की के पास जमीन के टुकड़ा भी नहीं था, लड़की के पास सोना चांदी के छल्ला भी नहीं था। अल्लाह अल्लाह, लेकिन लड़की ने वो चादर ओढ़ी और ओढ़ के मर्दों की लाइन में खड़ी हो गई, अपने जिस्म को बचाते हुए किसी से टकरा ना जाए तो खड़े खड़े रो रही है और कह रही है मौला मेरी हिफाजत भी करना, मौला मेरे बच्चों की जान भी बचा लेना। अरे तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है, किन किन लोगों की कुर्बानियां हम तक हुई है। हम तो खाली खेलियां खेल रहे हैं, यहाँ के गयूर मुसलमान सुनाओ। अब वो लड़की रो रही है, नीचे को नजर करके आंखों से आंसू टप टप गिर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कह रही है, दिल ही दिल में सवाल कर रही है, तेरे पास सोना चांदी नहीं, तेरे पास जमीन नहीं, क्या रखेगी? तो कभी तो कह रही है कि मैं हसन हुसैन का वास्ता दूंगी, कभी कह रही है कि मैं नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, कभी कह रही है मैं पंजतन पाक का वास्ता दूंगी। अल्लाह अल्लाह इतने में उस गुंडे की नजर पड़ जाती है, उसने उस लड़की को पहचान लिया। अरे यही वो लड़की है जिसमें इसकी नीयत खराब हुई थी। इसने अपने दो आदमियों को बुलाया, दो गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ उस लड़की को पकड़ के जरा मेरे पास ले आओ। अल्लाह अल्लाह, वे दोनों चले जाते हैं, उस लड़की को पकड़ के उस मालदार के पास ले आते हैं। ये लड़की दिल दिल में कह रही है मौला खैर करना, मौला खैर करना, मौला खैर करना। उस मालदार के दर घर पे जब पहुंच जाती है, वो दोनों गुंडे छोड़ के चले आए। मालदार ने पहचान लिया, कहा यही है, कहा बोल क्या बात है, क्यों आई है? तो ये हाथ फैला के कहने लगी ओ भाई अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, अल्लाह ने तुझे माल दिया है, मेरा कोई नहीं है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, तू उनकी जान बचा ले, हो सकता हश्र के मैदान में तेरी यही नेकी काम आ जाए। अल्लाह अल्लाह, मगर उसकी फिर भी नीयत खराब हो गई। इसलिए जिसके सर पे शैतान होता है उसे कितनी हदीसें सुना दो, उसे कितनी कठिन बातें सुना दो, उसे तो हंसी चाहिए, मजाक चाहिए, उसे फिटने चाहिए, फिटने। अरे कब तक हंसोगे? एक दिन दुनिया हम पे हंसने लगी है, अरे कब तक हंसी मजाक फिटने करोगे? ये दुनिया हम पे फूकने लगी है। क्या है? माफ करना, मैं जुमले करने बोल रहा हूँ, माफ करना। अरे मैं तुम्हें क्यों बुरा कहने लगा हूँ? तुम इस्लाम रिश्ते के मेरे भाई हो, बोलो अगर तुम्हें नहीं सुनाऊंगा तो किसे सुनाऊंगा? वो लड़की कहने लगी, लड़की क्या कह रही है? उस लड़के ने कहा मेरा कहना मान ले, अगर तू जिस काम के लिए मैं कह रहा हूँ अगर तू उस पर राजी हो गई तो मैं तेरे बच्चों की
जान बचा लूंगा। आप समझ गए होंगे उसने क्या कहा था। अल्लाह अल्लाह, इस लड़की की चीख निकल गई और वो करके कहने लगी, मौला मौला मौला, इस जालिम के दिल में रहम डाल दे। उधर मेरे बच्चों की जान जा रही है और इसके सर पे शैतान है। इसने कहा मेरा कहना मान ले। उस लड़की ने खड़े होकर के अल्लाहु अकबर का नारा लगाया था। उस लड़की ने वहीं पे खड़े होकर के अल्लाहु अकबर का नारा लगाया था। कहा मौला तू मुझे बचा ले और कासिम तेरी दौलत पे लाना, तेरे रुपयों पे लाना, तेरे पैसों पे लाना। मैं अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों की मौत अपनी गोद में देख सकती हूँ, मगर शरीयत मुस्तफा को पामाल नहीं कर सकती। शरीयत मुस्तफा को अपने दावों से नहीं रोक सकती। शरीयत मुस्तफा को मैं दाग नहीं कर सकती। अरे पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, मगर शरीयत मगर मुस्तफा जाने रहमत को नाराज नहीं कर सकती। ये इस्लाम की शहजादी जब खड़ी हुई, ये कहा तुझ पे लाना, तेरी दौलत पे लाना। इस नौजवान को गुस्सा आ गया, उसे जलाल आ जाता है। वो क्योंकि दौलतमंद था, उसके पास 40-50 आदमी रहते थे। उसने खड़े होकर के लड़की के इतनी जोर से धक्का मारा, जलाल में आकर के वो लड़की ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। ऐसा धक्का मारा, लड़की चौखट में जाके लग जाती है। उस गरीब का सर फट जाता है, खून निकलने लगता है, बहने के गर्दन में आने लगता। मगर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो इस्लामी शहजादी कह रही थी अल्लाह अकबर। सुनो प्यारे, उस लड़की को चक्कर आने लगा, उसकी आंखों के नीचे अंधेरा आने लगा, क्योंकि सर में चोट लग गई, खून निकलने लगा। बेचारी ने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। और नौजवानों, अरे माँ बच्चों के लिए क्या क्या झेल रही है। आज के बाद मैं तुम्हें ये पैगाम दे के जाता हूँ, अपनी माँ के सामने आंखें मत निकालना, अपनी माँ को और बाप को जवाब मत देना। आज के बाद अगर तुम नबी के पक्के सच्चे गुलाम हो तो तुम्हारी माँ या बाप का खड़े रहो, तो फर्मा बरदार देकर खड़ा रहना चाहिए। माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना। ये लड़की, इसकी आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, इसने चौखट पकड़ के अल्लाह 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 कहते हुए नीचे को सड़क आई, जमीन पांवों के नीचे से निकल रही है। तीनों बच्चे उधर सिसकियां ले रहे हैं, तीनों बच्चे उधर दम तोड़ रहे। हमारी माँ कुछ लेकर के आती होगी, हमारी माँ हमारे लिए कुछ इंतजाम करके लाती होगी। और मेरी इस्लामी शहजादियों, बगैर दुपट्टे के घूमने वाली हो, गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें करने वाली हो, अगर तू मेरी बहन है, इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन शहजादी, आज के बाद तुम मोबाइल में आग लगा देना। आज के बाद तू ये सारी चीजें खत्म कर देना और रो रो करके तौबा कर लेना और फिर के अंदर के कह देना मौला मुझे माफ कर दे मौला, और दुनिया वालों को बता देना अरे हम ही है वो जो अपना दुपट्टा उठा करके दुआ कर दे। तो जंग में भी फतह भी मिला करती है, इनकलाब पैदा कर देती है ये इस्लामी शहजादियां। वो लड़की बेचारी कांप रही है, आंखों के नीचे अंधेरा है, चौखट पकड़ रही है, हाथ तक पकड़े, मगर अल्लाह अल्लाह कह रही है। उस गुंडे ने अपने 2 आदमियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ इसको धक्के मार मार के इसके घर पे फेंको। बेचारी ने दुपट्टा छीन लिया, अल्लाह अपने आप को छुपा रही है, दुपट्टा से छुपा रही है, मगर दुपट्टा छीन लिया। इसने इधर को धक्का मारा, वो गरीब उधर जाके गिरी, उधर से उठा के धक्का मारा, इधर आके गिरी। अरे इस्लाम की
शहजादियां ऐसी है, अल्लाह अल्लाह, अब धक्के मार मार के बेचारी को उसके दरवाजे पे फेंक दिया। जब दरवाजे पे आके गिरती है, लड़की पड़ी है ऐसे करके। जब तीनों बच्चों ने देखा, अरे ये तो हमारी माँ है, माँ से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, कहा रही है, कह रही है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे चारों हाथ पाँवों से पड़ी है और कह रही है अल्लाह अकबर। तीनों बच्चों ने देखा, माँ माँ हमें माफ कर दो, माँ हम तुमसे खाना नहीं मांगेंगे, माँ हम तुमसे पानी नहीं मांगेंगे, माँ हमें माफ कर दो, माँ तुम्हें क्या हो गया माँ। और नौजवानों, जब माँ के कानों में बच्चों की आवाज आई, माँ को एनर्जी आ गई, जान आ गई, उठ के बैठ गई, अपने आप को छुपा के दूसरे दुपट्टे ओढ़ के तीनों बच्चों को गोद में ले लिया। कहा मेरी जान तुम पे कुर्बान। बच्चे कहे माँ तुम्हारा खून निकल निकल कर जम रहा है, माँ माँ माफ कर दो माँ। तीनों बच्चे, अरे किसी ने प्यार में गले में हाथ डाला, किसी ने बालों में हाथ डाला, किसी ने मुंह को छुआ। छोटा बच्चा या बच्ची कितना प्यार करती है, माँ के गले में चिपट चिपट के, बाप के बाल पकड़ पकड़ के कितना प्यार करती है। तीनों बच्चे दम टूट रहा था और तीनों बच्चे रो के कह रहे माँ माँ हमने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया माँ, हम एक चीज तुमसे मांगना चाहते हैं माँ, आखिरी चीज हम तुमसे मांग रहे माँ, इसके बाद हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे माँ। माँ कहती है मेरे लाल, मेरे हाथों में छाले पड़ गए, मेरी जान मांगोगे तो जान दे दूंगी, मेरे खून के कतरा मांगोगे खून का कतरा कतरा दे दूंगी। कहा नहीं माँ हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं माँ, आज के बाद तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे माँ, आज के बाद कोई तलब नहीं करेंगे माँ, आज के बाद कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे माँ। माँ बोलो हमारी बात को पलटाओगी तुम्हें माँ, माँ तुम्हें नबी का वास्ता, माँ तुम्हें हसन हुसैन का वास्ता। तीनों बच्चे कह रहे माँ तुम्हें वास्ता सैयदा फातिमा का, तुम हमारी बात को रद्द न करना। माँ दिल खोल के बैठ जाती है मांगो, माँ की जान बच्चों पर कुर्बान। कहा मांगो मेरे लाल। तीनों बच्चे एक सवाल होकर के क्या मांगते हैं, कहते हैं माँ तुमने हमें खाना खिलाया इन्हीं हाथों से कमा कमा के, पानी पिलाया इन्हीं हाथों से माँ, हमारी आखिरी चाहत ये है माँ अब अपने हाथों से हमारा गला ढोल दे माँ, बस हम मरना चाहते हैं माँ, हम तुम्हें तकलीफ में डालना नहीं चाहते हैं माँ, अपने हाथों से हमारा गला खोल दो माँ। अरे कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चे का गला खोल दे, बोलो सकती है क्या? अरे कौन सा बाप ऐसा होगा जो अपनी बेटी के गले पे पौड़ों में खड़ा हो जाए? नहीं हो सकता। ये माँ पीछे को टिक जाती है, कहती है मेरे लाल मैं सब कुछ कर सकती हूँ मगर अपनी औलाद का गला नहीं खोल सकती। माँ ने फैसला कर लिया, कहा बेटो बैठो अब तुम्हारी माँ जा रही है। अब माँ ने फैसला दिल में कर लिया, चलो उस गुंडे के घर चलो, अपनी इज्जत नीलाम कर दो, इज्जत उसके हवाले कर दो और इज्जत हवाले करने के बाद बच्चों की जान बचा के तौबा कर लूंगी। अल्लाह अल्लाह ये कह के जब माँ चली, तो मुसलमानों, नौजवानों, कमेटी वालों या गैर कमेटी वालों, आज के बाद माँ का कहना मत डालना। अरे माँ को बड़ी तकलीफ होती है, माँ जब बच्चा पैदा करती है मालूम है
تو موت اور زندگی کے درمیان ہوتی ہے، موت اور زندگی کے درمیان ہوتی ہے میرے بھائی سنو۔ اب وہ لڑکی جب رکھ کے تینوں بچوں کو چلی، تینوں بچے کہہ رہے ماں تمہارے دامن پہ داغ نہیں ہے، ماں مت لگاؤ، ماں تم بہت پوتر ہو، ماں تم بہت پاک ہو، ماں تمہاری پاکی کی قسم کھایا کریں گے۔ مگر وہ لڑکی چلتی چلی جا رہی ہے، تینوں بچے گھر پہ سسکتے رہ گئے، مگر دل میں خیال آیا لڑکی سے، اس لڑکی نے مالدار کے دروازے کی جا کے کنڈی پکڑ لی، کنڈی کھولنے والی تھی، دل میں خیال آیا وہ لڑکی سے ارے تو کس اسلام کو اپنے اوپر تو داغ لگانے جا رہی ہے، کس اسلام پہ داغ پھٹا لگانے جا رہی ہے، ارے ذرا نبی کے بچوں کو دیکھ، اسلام کو بچانے کے لیے کربلا نے اپنے بچوں کو نہیں بچایا، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو کٹوا دیا، اپنے بچوں کی قربانی دے دی، اور تو بچوں کو بچانے کے لیے اپنی عزت پہ داغ اور دھبا لگانے جا رہی ہے۔ فاطمہ کو کیا منہ دکھائے گی، زینب کو کیا منہ دکھائے گی، سکینہ و سکینہ جو عربی میں لفظ ہے حضرت سکینہ کا، کہا ان کو کیا منہ دکھائے گی، ام رومان شہر والوں کو کیا منہ دکھائے گی، نبی کو کیا منہ دکھائے گی، کیا منہ لے کر کے تو جائے گی۔ جب اتنا کہا نہیں اب میں یہ کام غلط نہیں کر سکتی، مگر لڑکی کو چکر آ گیا، کنڈی لے کے نیچے کو گر جاتی ہے، کیوار کھل جاتی ہے، ویسے ہی کیوار کھلی، اس نوجوان نے کہا سن دیکھ میں نے کہا تھا تو آئے گی، آ گئی، بول کتنے روپیے چاہیے، بول کتنے پیسے چاہیے، بول تو اسی بات پہ آمادہ ہے یا نہیں، بول تو میرا کہنا مانے گی یا نہیں، ابھی نہیں، پہلے تو اپنے بچوں کو بچا لے، تو مجھ سے اناج لے جا، مجھ سے دولت لے جا۔ جب اتنا کہا اس لڑکی میں جان آ گئی اور کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے کہنے لگی او نادان تو کتنا بڑا گنہگار ہے، ارے شرم کر ذرا نبی کی، ارے ذرا خوف کر خدا کا، ارے تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان، تیری ماں بھی مسلمان، ارے تو توبہ کر لے، میرا تو قدم غلط ٹوٹ چکا تھا مگر مجھے میری فاطمہ نے بچا لیا۔ کہا فاطمہ، کہا تو نہیں جانتا، ارے جو سیدوں کی دادی ہے، تو نہیں جانتا جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، ارے تو نہیں جانتا جو حسن و حسین کی ماں ہے، ارے تو نہیں جانتا جو علی کی بیوی ہے، ارے تو نہیں جانتا جو نبی کی بیٹی دل کا ٹکڑا ہے، ارے تو نہیں جانتا وہ فاطمہ جس کی نہ سیرت کا جواب، نہ گفتار کا جواب، نہ رفتار کا جواب، نہ سیرت کا جواب، نہ سیرت کا جواب۔ ارے کبھی تو بریلی کے امام علامۃ الزمان فرید الآبان ملحد النظارے سید الامام الشیخ امام احمد رضا خان اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا بریلی کے امام احمد رضا بولے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اسلام۔ پیارو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لڑکی کیا بولی، کہا دیکھ تو بھی توبہ کر لے، اللہ رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، وہ سب قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا، اگر اس کی توجہ رکھو، توجہ تھوڑی دیر، کہ اگر اس کی رحمت کے چند قطرے برس گئے تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو اس کی رحمت دھو ڈالے گی، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب اتنا کہا یہ لڑکی کہہ کر کے چلی گئی، تینوں بچوں کو گود میں لے کے موت کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس لڑکے کے دل کو جھٹکا لگ جاتا ہے، لڑکے کا دل کانپنے لگتا ہے، یا اللہ کتنے ایمان میں مضبوط ہے، کتنی پختہ ہے یہ لڑکی، کتنی
लाजवाब है। अरे इसके बच्चे जा रहे हैं मगर ईमान जाने नहीं दिया, इसके बच्चे जा रहे हैं मगर इज्जत पे टक्का लगने नहीं दिया, इज्जत पे धब्बा लगने नहीं दिया, इज्जत पे दाग लगने नहीं दिया, इज्जत को खोटा होने नहीं दिया। कितनी ईमानदार लड़की है या अल्लाह, ये कैसी लड़की है। उस नौजवान ने तौबा कर ली और रोने के बाद, तौबा करने के बाद 2 आदमियों को बुलाया, बुलाने के बाद फौरन अनाज लिया का चलो उस लड़की के घर, और जा करके उस लड़की के घर कहा ए मेरी बहन, आज तुझे देख करके मेरा ईमान बदल जाता है, मैंने पक्की सच्ची तौबा कर ली है, मेरे लिए दुआ कर दे। आज से तू अकेली नहीं है, आज से मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी बहन है। जल्दी से ले ले, बच्चों को बना और पका और खिला ले, बच्चों के लिए बना ले, पका ले, खिला ले, जान बचा ले। अल्लाह अकबर, लड़की ने बच्चों के लिए बनाया, पकाया, खिलाया, और खिलाने के बाद मुसल्ला बिछा करके उसने दुआ कर दी, हाथ उठा करके कहा मौला मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया था, ऐ अल्लाह तू रहमान है, ऐ अल्लाह तू करीम है, मेरे मौला इसके गुनाहों को माफ कर दे, ऐ अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। मौला ये मेरा भाई है, इस पे दुनिया और इस पे दुनिया और जहन्नम की आग दोनों हराना। उस लड़की की दुआ कबूल हो गई। ये लड़का कौन है? ये लड़का वही है जो हाथों में आग ले लेता है, हाथ नहीं जलते हैं, आग पे चलता है, पांव नहीं जलते हैं। क्या था, क्या हो गया? दामन में आग ले लेता है, दामन नहीं जलता। क्यों? पक्की सच्ची तौबा करने की बिना पर दिल पिघल आया है। पीर साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, शोरा बैठे हैं, कुछ नहीं मानता हूं। प्यारो तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, आज मेरे साथ हाथ उठा करके पक्के सच्चे दिल से तौबा कर लो सब लोग। और उलमा इस नियत से उठा लें, इनके हाथ कुरान से टच हुए, हदीसों से टच हुए, इनके हाथ अगर उठ गए, इन्हीं के सदक़े में हो सकता सबकी दुआएं कबूल हो जाए। इस नियत से उलमा से उठवा रहा हूं, ज़हमत नहीं दे रहा, इसलिए उठवा रहा हूं, ये अच्छे लोग हैं। समझ में आ रही है? प्यारे पक्के सच्चे दिल से तौबा कर लेना। मेरी बहनें हाथ ना उठाए मगर पक्के सच्चे दिल से तौबा वो भी कर लेना। प्यारे जो मैं कहूँ वो तुम कह के बोलो, तौबा करोगे? तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, गरीब नवाज का वास्ता, अभी तुम्हें नाते सुननी है, एक एक शायर के जौहर देखना है। आज तौबा करो सब लोग, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकेंगे, आज के बाद शरीयत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे, पक्के सच्चे नमाजी बनेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, पक्के सच्चे नबी के गुलाम। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो प्यारे, मेरी मेहनत वसूल हो गई। अगर एक की भी दुआ कबूल हो गई, मेरा नजराना कबूल हो गया, मेरा नजराना कबूल हो गया। ये अच्छे अच्छे उलमा, हालांकि बोलना तो बहुत कुछ था मगर इस वक्त में आपने सुन लिया। और ये शोरा हजरत, मैं जानता हूँ ख्वाजा गुलाम सरवर कितनी मोहब्बत करते हैं, और गुलफाम हस्सानी ये मेरे पास पढ़े भी, गुलाम हस्सानी सालिसा जमात तक मेरे पास पढ़े। बहरहाल और अल्लाह ताला, और ये पीरान इज़ाम, ये मेरे भाई हजरत और हमारे बाबा साहब, ये मैं तारुफ नहीं करा पाया हूँ, एकदम खुतबे के बाद मैंने इनको ले लिया, वरना ये उठ के चले जाते। ये सब मेरे सर के ताज हैं, समझे, सब मेरे सर के ताज हैं। जाना नहीं, अब आगे हजरत बताएंगे क्या प्रोग्राम होगा। जो प्यास रह गई है ना वो भी बुझाना, मगर आज के बाद ये जलसा तुम्हारा कामयाब हो जाना चाहिए। आज के बाद इतने अच्छे बन जाओ, इतने प्यारे बन जाओ। छोटे छोटो बड़ों की इज्जत करो। इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम। इन्होंने अल्लामा सरदार अहमद नईमी साहब ने
اتنے فون کیے اور میں کہیں پتہ نہیں ادھر ہی تھا یا کہاں تھا باہر راجستھان وغیرہ، تو 3-4 دن میرا فون لگنے ہی پریشان ہو گئے بیچارے پریشان۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے پیران جتنے بھی ہیں ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کے بعد ماں باپ کی عزت کرنا، اماموں کی عزت کرنا، مدرسے کے بچوں کی عزت کرنا، عالموں کی عزت کرنا، حافظ و قاریوں کی عزت کرنا، نمازیوں کی عزت کرنا، حاجیوں کی عزت، ماں باپ کی عزت کرنا، ہر بڑے کی عزت کرنا۔ ادھر سے آؤ تو سلام، ادھر سے آؤ تو سلام، آپس میں میل محبت پیار۔ یار ارے جیو زندگی جیو، یہ کیا منہ سکوڑے پھر رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، مگر دل میں اتنا میل گھسا پڑا ہے، اتنا جلن حسد کینہ۔ یہ کوئی زندگی ہے کیا؟ ایسے زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں، معاف کرنا تمہیں جانور نہیں کر، ایسے کون زندگی نہیں گزارتا؟ اچھی زندگی گزارو، اپنے لیے جیا تو کیا لیا جیا، کبھی کسی دوسرے کے لیے جی کر کے دیکھو، سمجھے؟ اتنی شاندار زندگی، جب تم چلو کھاؤ پیو، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں، اپنے نہیں دوسرے کہیں، غیر کہیں واہ، جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو تقریر بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، تو سب باتیں ہوں گی، اور اللہ نے موقع دیا تو، مگر جو باتیں میں نے کہی ان پہ عمل کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ کے ساتھ کلمہ شریف پڑھیں گے، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔